Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandilwar and in today's lecture we will be studying sequence and series topic, and in which we will be understanding GP, what is GP, and general terms, sum to n terms and geometric mean. Using these topics we will be covering exercise 9.3. So let us start. Geometric progression, that is GP, is one of the sequence. So first we will see that how can we identify whether the given sequence is GP or not. So A1, A2, A3 till AN, this sequence will be in GP if the definition is the ratio of two successive terms should be same. The ratio of two successive terms like A2 by A1 should be same as A3 by A2, should be same as A4 by A3 dot 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 should be same as last term divided by the second last term. So if the ratio of two successive terms is same, then we say that it is in GP. So here I have used double implication sign. So what is double implication? If any of the terms are satisfying this condition, then we can say they are in GP, and if there are some terms which are in GP, then we can use this result, that ratio of two successive terms will be same. Now we will take one example. So if we are having a sequence like 2, 4, 8, 16, 32 dot dot dot. So here we can see the second term divided by first term is 2, and which is also same as third term divided by second term, which is also same as 16 by 8, which is also same as 32 by 16, and so on. So here we can say that this is in GP. And if we see the ratio is 2. The ratio is 2, right? So bacha, this ratio is known as common ratio. This ratio is known as common ratio. So we are having some notation. We use common ratio as small r and first term as small a, like in AP. So AP में भी हम फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ पर भी स्मॉल a से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे हमें कॉमन रेशियो मिलता है जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. सो कॉमन रेशियो बहुत ईजी होता है कैलकुलेट करना. वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड कॉमन रेशियो, वट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ second term divided by first term and it will give us the common ratio, right? So using this formula we can find common ratio for any GP. If this is the first term and this is the common ratio, then we can write the pattern of the GP. So what will be the pattern of the GP? If we see in this example, here the first term is 2, the second term is 4, और वो कैसे आया? First term into 2, we will get 4, then 4 into 2 we will get the next term which is 8, then 8 into 2 we will get the next term which is 16, then 16 into 2 we will get the next term, and so on. So if the first term is a and the common ratios are, so second term will be a into r, next term will be a r into r, that will become ar square. तो जो ये टर्म्स है ये कैसे आ रही है? r से मल्टीप्लाई होते हुए. In this example, the first term was 2, so 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, and so on. तो इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया, और हमें टर्म्स मिलती गई. 2 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज 2 वॉज द कॉमन रेशियो. तो जो भी कॉमन रेशियो होगा उससे हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी GP में. तो अगर a फर्स्ट टर्म है, देन सेकेंड विल बी AR एंड द थर्ड विल बी AR स्क्वायर, एंड सिमिलरली द नेक्स्ट विल बी AR क्यूब, क्योंकि R से मल्टीप्लाई होता जाएगा और हमें GP मिलता जाएगा. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ GP. So here we can observe that A is nothing but the first term, AR is nothing but the second term, AR square is nothing but the third term, and AR cube is nothing but the fourth term.
ऐसे हमें टर्म्स मिलती जा रही है. तो सिमिलरली इफ़ यू वांट टू फाइंड से 15th टर्म, so what will be the 15th term? Using this pattern we can say the 15th term will contain a because all are containing a, and it will also contain r with some power. तो बच्चा आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर a1 है तो r है ही नहीं, a2 में r की पावर 1 है, a3 में थर्ड टर्म में r की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में r की पावर 3 है, तो 15th में कहना ही से r की पावर 14 होगी. सिमिलरली इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट a18 यानी कि 18th टर्म, सो इट विल बी a इंटू आर टू द पावर 17. एंड यूजिंग दिस पैटर्न ओनली वी कैन से द nth टर्म विल बी a इंटू आर टू द पावर n-1. तो यहाँ से हमें मिल गया nth term formula which is known as general term. So here now we are having general term formula. So what is the general term formula here? The general term formula is nth term is equal to a into r to the power n-1. This is general term formula. Now we are having sum to n terms formula also. Sum to n terms formula. So what is sum to n terms formula? Sum to n terms means Sn. So Sn is a into r to the power n-1 upon r-1 when r is not equal to 1. When r is not equal to 1. क्योंकि अगर r 1 हो गया तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फॉर्मूला. तो वी हैव टू मेक श्योर दैट r शुड नॉट इक्वल टू 1. इफ r इज़ नॉट इक्वल टू 1 देन वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम टिल n टर्म्स. एज पर दी NCERT उन्होंने बच्चा इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. ये r इज़ नॉट इक्वल टू 1 है तो उन्होंने डिवाइड किया हुआ है r इज़ लेस देन 1 एंड r इज़ ग्रेटर देन 1. एंड r इज़ लेस देन 1 के लिए दे आर यूजिंग द फॉर्मूला a इंटू r a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r and for r is greater than 1 सेम फॉर्मूला. इवन ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये सेम ही हैं, इसमें जस्ट माइनस कॉमन लिया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एंड वो कैंसिल हो गया. तो अगर आप इसको दोनों को अलग अलग याद नहीं करते हो, अगर आप सिर्फ इस वाले को याद कर लेते हो तो भी ओके है. ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि NCERT के अकॉर्डिंग उन्होंने दो में डिवाइड किया, बट आप एक ही याद कर सकते हैं. एंड ये जो फॉर्मूला है ये है व्हेन r इज़ नॉट इक्वल टू 1. व्हाट इफ़ r इज़ इक्वल टू 1? इफ़ r इज़ इक्वल टू 1 तो क्या होने वाला है? अगर r हमारे पास 1 आ जाता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सम, तो वो भी एक बार देख लेते हैं. सो इफ़ r इज़ इक्वल टू 1 तो उसका मतलब क्या होगा? कॉमन रेशियो 1 है. अगर फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म a इंटू आर, बट r इज़ 1, सेकंड टर्म भी a होगी, थर्ड टर्म भी a होगी, फोर्थ टर्म भी a होगी, यानी कि जितनी भी टर्म्स है सब की सब हमें a मिलने वाली है. वी आर फाइंडिंग Sn यानी कि टिल n टर्म्स, तो a सब की सब a ही है. कितनी टर्म्स है ये n, तो इसका मतलब होगा कि हमें a को n टाइम्स ऐड करना होगा इफ़ r इज़ इक्वल टू 1. एंड बच्चा ये जो GP है इसको हम कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं एंड दिस कांस्टेंट सीक्वेंस इज GP एंड AP बोथ. ये AP भी है GP भी है. GP विद कॉमन रेशियो 1 एंड AP आपने 10th में किया हुआ है. दिस इज ऑल्सो AP वैन D द कॉमन डिफरेंस इज 0. तो ये AP भी होता है GP भी होता है. एंड इस केस में हमारे पास सम क्या आएगा, बिकॉज वी आर एडिंग a n टाइम्स, तो इस केस में हमारे पास जो सम निकल के आएगा वो आएगा a इंटू n. तो a इंटू n आ जाएगा हमारे पास सम इफ़ r इज़ इक्वल टू 1. a इंटू n विल बी द सम. ठीक है, तो a इंटू n वाला इतना यूज़ नहीं होता है. मेन जो फॉर्मूला है वो यही यूज़ होगा व्हेन r इज़ नॉट इक्वल टू 1. ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद करना है. तो जनरल टर्म फॉर्मूला हो गया, सम टू n टर्म्स फॉर्मूला हो गया. अब ज्योमेट्रिक मीन है और कुछ छोटे मोटे रिजल्ट हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं. सो नेक्स्ट रिजल्ट, से थर्ड रिजल्ट, इफ़ वी आर हैविंग थ्री टर्म्स a, b and c, if they are in GP, so what is the result of GP? GP says that the second term divided by the first term will be same as third term divided by the second term. And अगर आप यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो you will get b square is equal to ac. b square is equal to ac.
So what is the conclusion? Whenever three terms are in GP, then the square of the second will be same as first into third, or vice versa. यानी कि whenever there are three numbers which are satisfying these two conditions, or you can say if there are three numbers which are satisfying this result, then we can claim that they are in GP. तो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो. अगर तीन नंबर्स है जो GP में है तो हम उनके लिए ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, दैट स्क्वायर ऑफ द सेकेंड विल बी सेम एज फर्स्ट इंटू थर्ड. एंड इफ़ दे आर थ्री नंबर्स जो ये रिजल्ट सेटिस्फाई करते हैं कि कोई किसी एक का स्क्वायर किसी दो के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो हम ये रिजल्ट यूज़ कर लेंगे कि वो तीनों GP में है विद दिस ऑर्डर, राइट. तो ये डबल इम्प्लीकेशन का मतलब यही होता है कि आप लेफ़्ट से राइट एंड राइट से लेफ़्ट दोनों ही रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं. नाउ द फोर्थ रिजल्ट वो ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला है बच्चा. ज्योमेट्रिक मीन जैसे आपने 10th में क्या होगा अर्थमेटिक मीन, ऐसे ही हमारे पास एक ज्योमेट्रिक मीन है GM, that is geometric mean. So geometric mean between two numbers, say the two numbers are A and B. So what is the geometric mean formula between two numbers A and B? Is square root of A and B, square root of AB, square root of A into B. But there is a condition that A and B both should be positive. अगर उनमें से कोई भी एक नेगेटिव हुआ तो वो इमेजिनरी में चला जाएगा, हम रियल नंबर्स में नहीं रहेंगे, इसलिए बोथ शुड बी पॉजिटिव. तो इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं. से इफ़ वी आर हैविंग A एज 3 and B as 27, then what will be their geometric mean? The formula of geometric mean is square root AB. Here A is 3 and the B is 27. So 3 into 27 and that will become 81. Root of 81 is 9. तो geometric mean हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 9. If you observe बच्चा A is 3 and the B is 27 एंड जो इनका geometric mean है अगर उनको हम इसके मिडल में लिख लेते हैं इस सीक्वेंस में, ये जो तीन नंबर्स है जो ये सीक्वेंस बना रहे हैं, इस सीक्वेंस को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो दिस इज़ नथिंग बट GP. The ratio of 9/3 is same as the ratio of 27/9. So what is the conclusion? The conclusion is this. We can write the conclusion as result. We can say that A and B अगर इनके geometric mean को इसके बीच में लिखते हैं then this will be a GP. This will be a GP in this order. ये एक GP represent करेगा, right? Now the next result. नेक्स्ट एक सजेशन है. नेक्स्ट रिजल्ट जो है या नेक्स्ट पॉइंट जो है, दिस इज़ काइंड ऑफ अ सजेशन. सो व्हाट इज़ द सजेशन? दैट whenever we are having, yeah, as per the question, if it is given product of three terms. So if the given is product of three terms in GP, ये suggestion है in GP. So whenever in GP the product of three terms is given, what is given? The product of three terms is given, then consider terms as, in the first case whenever the product of three terms is given, then consider terms as A by R, comma A, comma AR. ठीक है. So what is this point? Whenever product of three terms is given, then consider terms as A by R, A and AR. And the second, if the product of four terms is given, then consider terms as A by R cube, A by R, AR, AR cube. Here we can observe in the first case, in this the first term is given as A by R. अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो इसमें फर्स्ट टर्म A by R है एंड कॉमन रेशियो is R. In this case, if we are taking terms as A by R, A and AR, and in this second case, here
फर्स्ट टर्म इज़, जो सबसे पहले लिखा है डेट विल बी द फर्स्ट टर्म. हियर द फर्स्ट टर्म इज़ a/r³ and the common ratio is, what is the common ratio? कॉमन रेशियो क्या होता है? जिससे आपने मल्टीप्लाई करके सेकेंड टर्म फाइंड आउट किया है. तो अगर आप इसमें केयरफुली कॉमन रेशियो निकालें देन यू विल ऑब्जर्व दैट कॉमन रेशियो इज r². द कॉमन रेशियो इज नॉट r, सो बी केयरफुल इन दिस केस. ये इस टाइप का क्वेश्चन एक है बच्चा एक्सरसाइज में, तो वो हम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रॉम 9.3 एक्सरसाइज. तो उसमें प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स गिवन होता है, तो हम ऐसे कंसिडर करते हैं ताकि हमारा ईजिली आंसर आ जाए. तो ये हमारी काफ़ी हेल्प करता है. तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इस चैप्टर में. सीक्वेंस एंड सीरीज में कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन करना है. बट हमने यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो वैरायटी को कवर करते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ 1 मार्कर. So what is the question? Question is saying find the 20th and nth terms of this GP. So as per the GP we can say here a, the first term is 5/2 and we can find the common ratio also. Common ratio का formula क्या होता है? a2/a1. So what is a2? What is the second term here? 5/4 है ना. This is the second term divided by the first term which is 5/2. तो 5 से 5 कैंसिल होगा एंड ये आपने सीखा हुआ है 5/4 और जो अपॉन में लिखा है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5. तो हमें कॉमन रेशियो क्या मिल गया? 1/2. सो वी आर हैविंग कॉमन रेशियो, वी आर हैविंग ए. हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है 20th टर्म. वट इज़ द फॉर्मूला फॉर 20th टर्म? a इंटू r टू द पावर n-1. 20 - 1 दैट विल बिकम 19. सो a इंटू r टू द पावर 19. सो वी विल पुट द वैल्यूज़ 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर 19. तो बच्चा ये सॉल्व करके कुछ 5 इंटू 1/2 होल टू द पावर 20 बन जाएगा. 20 काफ़ी लार्ज है तो हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे एंड यहीं पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे. इसके अलावा इन्होंने nth टर्म पूछा है, तो nth टर्म द सेम फॉर्मूला a इंटू r टू द पावर n-1. सो यू विल पुट वैल्यू ऑफ a, यू विल पुट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ r, n की वैल्यू नहीं है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे. ये आ जाएगा n-1. तो डिनोमिनेटर में जो 2 है इनको क्लब कर लेंगे, तो 5 इंटू 1/2 होल टू द पावर n. सो ये हमारा आंसर आ जाएगा. 1 मार्कर. नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. दे आर सेइंग विच टर्म ऑफ द जीपी इज 729. तो 729 कोई एक टर्म है, हमें इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. हमें गिवन है an. सो बच्चा एज पर द जीपी यू कैन सी द फर्स्ट टर्म इज √3. द फर्स्ट टर्म इज √3. And what will be the common ratio? Common ratio is second term divided by the first term, hence the common ratio will be √3. 729 कोई एक टर्म है, say nth टर्म है, and we have to calculate the value of the term, the position of term, that is n. We have to calculate the value of n. So we will use the formula. an का formula क्या होता है? a into r to the power n-1 and here the nth term is 729. तो ये आपको कितना दिया हुआ है? 729. अब a एंड r की वैल्यू पुट कर देंगे. a है बच्चा √3, r इज़ ऑल्सो √3 होल टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 729. सो √3 दोनों हैं, इसकी पावर कुछ नहीं है, यानी कि 1 लिखा हुआ है, इसकी पावर n-1 है. हमने सीखा हुआ है इफ़ बेसिस आर सेम एंड दे आर रिटन इन द मल्टीप्लिकेशन तो पावर ऐड होती है. सो ये बन जाएगा √3 होल टू द पावर n-1 + 1 यानी कि ओनली n इज इक्वल टू 729. रूट को गायब करना आई होप आपको आता हो. रूट का मतलब होता है एनीथिंग टू द पावर 1/2. तो यहाँ पे √3 लिखा है तो इट विल बिकम 3 टू द पावर 1/2. तो ये बन गया 3 टू द पावर 1/2. n ऑलरेडी है तो इट विल बिकम n/2, राइट. एंड ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 729 के. 729 आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. दिस इज़ 9³ 729 इज़ 9³ एंड 9 होता है 3 स्क्वायर होल टू द पावर 3. सो इट इज़ नथिंग बट 3 टू द पावर 6. तो 729 को भी हमने LHS के अकॉर्डिंग 3 टू द पावर में लिख लिया एंड 3 टू द पावर में ये क्या बना है? 3 टू द पावर में ये बना है 729. 3 टू द पावर 6 बना है विच इज़ 729. तो अब हम इसको 3 टू द पावर 6 से रिप्लेस कर देंगे 729 को. नाउ वी कैन कंपेयर द पावर. सो n/2 इज इक्वल टू 6. That means n is 12. So again this is 1 marker and n का आंसर आया हमारे पास 12. Now the next question, for what values of x the numbers are in GP. So these 3 numbers are in GP and we have to find the values of x. हमने एक रिजल्ट लिखा था whenever 3 numbers
are in GP, then the result is square of the second will be first into third. ठीक है, ये आपको अभी आज की क्लास में रिजल्ट लिखा है. क्या रिजल्ट है? दैट इफ़ दे आर 3 numbers A, B and C are in GP, then square of the second will be equal to first into third. ये रिज़ल्ट है. तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया और ये कैंसिल होकर आपको 1 मिल जाएगा. इफ़ एक्स स्क्वायर इज़ 1 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो दिस इज़ द आंसर, अगेन 1 मार्कर. तो रिजल्ट है बच्चा, गिने चुने रिजल्ट है, वो अच्छे से याद होने चाहिए, उससे क्वेश्चन हो जाएंगे. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. सो दे आर सेइंग द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP इज़ 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 1. तो हमने सीखा था कॉन्सेप्ट, हमने सीखा था, हमने एक सजेशन लिखा था, व्हेन एवर प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स या 4 टर्म्स इन GP इज़ गिवन, तो हम एक पर्टिकुलर मैनर में टर्म्स कंसिडर करते हैं. तो यू कैन सी प्रोडक्ट दिया हुआ है 3 टर्म्स का GP के लिए, तो ये हमारे उसी पैटर्न से सॉल्व होगा. तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें टर्म्स कंसिडर जो करनी है वो डिफरेंट मैनर में कंसिडर करनी है, उसी मैनर में हम कंसिडर कर लेंगे. तो ये आइडेंटिफिकेशन थी क्वेश्चन की कि ये उसी कैटेगरी का है एंड उस कैटेगरी का है तो हम उसी के अकॉर्डिंग टर्म्स कंसिडर करेंगे. सो लेट द टर्म्स बी ए. तो फर्स्ट टर्म वॉज A by R. आप देख सकते हैं लिखा है हमने, आज ही लिखा है A by R, A एंड AR रिस्पेक्टिवली. तो हमने इसी ऑर्डर में 3 टर्म्स कंसिडर कर ली. अब इनका बच्चा प्रोडक्ट दिया हुआ है और सम दिया हुआ है, तो पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं. सो इट इज़ द गिवन, एज पर द गिवन देयर प्रोडक्ट इज़ देयर प्रोडक्ट यानी कि A by R, दिस इज़ फर्स्ट टर्म, द सेकेंड टर्म इज़ A एंड द थर्ड टर्म इज़ A into R. The product is given as 1. The product is 1. ठीक है, आप लिख लीजिए what is given. प्रोडक्ट दिया हुआ है एक तो 1 इन तीनों का एंड सम दिया हुआ है 39/10. सो दिस इज़ द गिवन इंफॉर्मेशन. तो बच्चा ये प्रोडक्ट को हमने 1 से इक्वेट कर दिया. नाउ यू कैन सी कि R से R कैंसिल हो जाएगा एंड A into A इज़ A क्यूब. सो इफ़ A क्यूब इज़ इक्वल टू 1 फ्रॉम हेयर वी विल गेट A एज 1. तो हमें ईजिली A मिल गया और वो इसीलिए मिला है क्योंकि हमने इस मैनर में टर्म्स कंसिडर किए है. इसलिए जब भी प्रोडक्ट दिया है 3 टर्म्स का या 4 टर्म्स का GP के क्वेश्चन में, तो हम इस मैनर में ही कंसिडर करते हैं टर्म्स. A हमें मिल गया. अब और क्या गिवन है? सम गिवन है. तो सम कितना दिया है? 39/10. सो ऑल्सो द सम इज़ गिवन. द सम यानी कि A by R प्लस द सेकेंड टर्म विच इज़ A प्लस द थर्ड टर्म विच इज़ AR. द सम इज़ गिवन एज 39/10. A हमें ऑलरेडी मिल चुका है, A की वैल्यू हम पुट कर देंगे. A इज़ 1, सो 1 by R प्लस 1 प्लस R इज़ इक्वल टू 39/10. सो एक इक्वेशन और A की वेरिएबल है, वी कैन ईजिली सॉल्व फॉर R. तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे. अगर आप इसे सॉल्व करते हो, एलसीएम लेते हो, यू विल गेट 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन R इज़ इक्वल टू 39/10. तो बच्चा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी 10R स्क्वायर प्लस 10R प्लस 10 इज़ इक्वल टू 39R, विच कैन बी रिटर्न एज 39R को अगर हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो इट विल बिकम 10R स्क्वायर माइनस 29R प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वी कैन फैक्टराइज दिस मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करके. सो इट विल बिकम 10R स्क्वायर माइनस 25 एंड 4 हम ले सकते हैं विच इज़ 100. सो 25R माइनस 4R प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो यू विल गेट 2 वैल्यूज़ ऑफ R. एक आपकी आ जाएगी माइनस प्लस 5/2 एंड एक आपकी आ जाएगी 2/5. तो वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज़ ऑफ R. एज पर द क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है कॉमन रेशियो एंड टर्म्स. तो कॉमन रेशियो तो आ गया, अब हमें टर्म्स भी कैलकुलेट करनी है. टर्म्स हमने क्या कंसिडर किया है? A by R, A एंड AR, ये टर्म्स हमने कंसिडर किया है. तो हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. नाउ द टर्म्स, बट वी आर हैविंग 2 वैल्यूज़ ऑफ R, तो हमारे पास 2 आंसर आएंगे. केसेस बनेंगे. तो केस 1,
when r is 5/2. तो टर्म्स हमने कंसिडर की हुई है a by r, a was 1, so a by r that will become 2/5, the second is a that is 1, and the third is r which is 5/2. So this is case 1. Case 2, when the common ratio is 2/5, so in this case the terms will be a by r, a is 1, r is this, so 5/2, the second is a which is 1, and the third is r which is 2/5. तो ये हमारे दो आंसर है, दोनों ही वैलिड है. दिस इज समथिंग 3 मार्कर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. सो एज पर दिस क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग how many terms of GP 3 square 3 cube, this is the GP, are needed to give the sum 120. तो बच्चा सम गिवन है and we have to find the value of n. तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिलेगी वो लिख लेते हैं. वी कैन राइट द फर्स्ट टर्म. यू कैन सी दिस इज द GP. सो हियर द फर्स्ट टर्म इज 3. द कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म. सो सेकेंड टर्म इज 3 स्क्वायर, द फर्स्ट टर्म इज 3, so common ratio will be 3. And Sn, the sum is given which is 120, and we have to calculate the value of n. So we can use the formula of Sn. We know the formula of Sn is a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. So we will put their values. Sn is given as 120, a is 3, r is also 3 to the power n, हमें n नहीं पता है, -1 upon 3 minus 1, राइट. 3 minus 1 is 2, एंड अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. तो बच्चा एंड 120 से 3 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं. ये आ जाएगा आपका 40 टाइम्स. तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं, सो ट्वाइस इंटू 40 इज इक्वल टू 3 to the power n minus 1. तो बच्चा इट विल बिकम 80. इस -1 को उठा के यहाँ ले आएंगे तो +1 इज इक्वल टू 3 to the power n. 80 + 1 इज 81 इज इक्वल टू 3 to the power n. अब आपको पता होना चाहिए कि 81 को 3 की टर्म्स में हम कैसे लिखें. सो 81 इज 3 to the power 4 इज इक्वल टू 3 to the power n. सो हमें आंसर मिल गया NS4. सो दिस इज द फाइनल आंसर, एंड दिस इज समथिंग 2 मार्कर क्वेश्चन. दिस इज समथिंग 2 मार्कर, 1 मार्कर भी आ सकता है ये. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट the sum of first 3 terms is 16 and the sum of next 3 terms is 128. We have to calculate first term and the common ratio and sum to n terms. So what is the given information? The sum of first 3 terms. Sum of, by given information लिख लेते हैं. So the given information is sum of first 3 terms is, which can be represented by S3, is given as 16. Now sum of next 3 terms. Sum of next 3 terms को कैसे रिप्रेजेंट करें? Sum of next 3 terms. अब sum of next 3 terms का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं. तो sum of next 3 terms के बाद की जो 3 terms है उनका सम, यानी कि A4, A5, A6, राइट. तो बच्चा जो ये फर्स्ट 3 टर्म्स है उसको तो हमने S3 से लिख लिया. A4, A5, A6 अगर इनको ऐड करते हैं तो इसको हम S के फॉर्म में कैसे लिखें? इसको हम S6 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि Sn या S6 या कोई भी नंबर अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब होता है, Sn का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. फर्स्ट टर्म से सम करते हुए n टर्म्स तक. S7 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म से सम करते हुए S7 तक. तो S6 का भी मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म से सम करते हुए A6 तक. तो ये जो भी नोटेशन है Sn की वो फर्स्ट टर्म से सम निकालती है कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड जो भी n की वैल्यू वहाँ तक. ये स्टार्ट ही A4 से हुआ है, तो अगर ये स्टार्ट ही A4 से हुआ है तो इसको S की फॉर्म में कैसे लिखें? तो हम क्या करेंगे, ये A4 से स्टार्ट हुआ है, क्या मिसिंग है? A1, A2, A3 ये मिसिंग है, तो इसको हम ऐड कर देंगे. अब ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे बैलेंसिंग के लिए. हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें 4 + 5 + 6 का सम चाहिए था. अब ये बन गया हमारा कम्प्लीटली S6 और ये बन गया हमारा S3.
तो यानी कि S6 माइनस S3 इज़ नथिंग बट फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स टर्म। ये S6 माइनस S3 क्या होगा, 4 प्लस 5 प्लस 6, इन तीनों टर्म्स का सम होगा। ऐसे ही अगर हमें कैलकुलेट करना है, मान लीजिए A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, हमें इसको लिखना है Sn की टर्म्स में, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 to 6 मिसिंग है, तो 1 to 6 अगर हम लाते हैं तो ये टिल 10 करके S10 बन जाएगा, लेकिन 1 to 6 अगर आप लेके आए हो तो वो सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तो S10 माइनस X6 का मतलब क्या होगा, 7th प्लस 8th प्लस 9th प्लस 10th। तो ये काफ़ी यूज़ हो जाता है कॉन्सेप्ट, इसलिए ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स कैन बी रिटन एज S6 माइनस S3 एंड विच इज़ गिवन एज 128, राइट। तो इसको हम मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मान लिया इक्वेशन 2। नाउ वी विल यूज़ आइडेंटिटीज ऑफ Sn। सो इक्वेशन 1 S3 is equal to 16, this is equation 1। now we can use the formula Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला हमारे पास है, लिख लेते हैं Sn का फॉर्मूला, मेंशन कर देते हैं, Sn is equal to a into r to the power n minus 1 upon r minus 1, this is the formula of Sn। यहाँ पे a नहीं पता, कॉमन रेशियो कुछ नहीं पता है, तो a को a लिखेंगे, r को r लिखेंगे। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो S3 विल बिकम एज पर दिस फॉर्मूला, a इज़ a, r इज़ r, बट n इज़ 3, सो a इंटू r टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दिस इज़ गिवन एज 16। नाउ द इक्वेशन 2, एज पर द इक्वेशन 2 व्हाट इज़ गिवन, इक्वेशन 2 में गिवन है S6 माइनस S3 is equal to 128। तो बच्चा दिस कैन बी रिटन एज S6 is equal to 128 प्लस S3। S3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, S3 कितना दिया हुआ है, S3 है हमारे पास 16, सो 128 प्लस 16 एंड हैंस S6 विल बिकम 128 प्लस 16 138 144, यह आ गया S6, राइट। तो एक तो ये इक्वेशन है हमारे पास और S6 आ गया। अब S6 में भी फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, तो अगर हम S6 में फॉर्मूला यूज़ करते हैं सो इट विल बिकम a इंटू r टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज़ इक्वल टू 144। तो बच्चा जब भी हमारे पास GP में दो इक्वेशन आ जाती है तो हम उनको डिवाइड करते हैं, AP में हम उनको सब्ट्रैक्ट करते थे, लेकिन GP मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट बेस्ड सीक्वेंस है, तो इसमें हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं डिफरेंट इक्वेशंस को। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 एंड वी कंसिडर दिस एज इक्वेशन 4। नाउ वी विल डिवाइड दीज टू इक्वेशन, सो वी कैन फाइंड इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3। तो इनको अब केयरफुली डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद ये बनेगा क्या, दोनों के LHS लिख लेते हैं पहले तो। सो a इंटू आर टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 डिवाइडेड बाय a इंटू आर क्यूब माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज़ इक्वल टू RHS 144 अपॉन 16। अब जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देता है, तो यू कैन सी a से a कैंसिल, r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल, एंड ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। तो हमें क्या मिल गया, r टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन r क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 8। नाउ वी कैन यूज़ द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो r टू द पावर 6 माइनस 1 कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग r क्यूब माइनस 1 इंटू r क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय r क्यूब माइनस 1 is this is 9, there is an error, this is not 8, this should be 9, it should be 9, it should be 9। तो अब आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ कैंसिल होता हुआ दिखेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम हेयर वी विल गेट r क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स r क्यूब इज इक्वल टू 8, एंड इफ r क्यूब इज इक्वल टू 8 देन r विल बी 2। तो हमें कॉमन रेशियो मिल गया है, एंड एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म
and the sum to n terms, right? तो हमें कॉमन रेशियो मिल गया r is equal to 2. now we have to calculate the first term. so how can we find the first term? we can use the third equation. so I am writing here. so I am writing here बच्चा. so here r, we are having r as 2. now we will put value of r in equation 3 and from here we will get a का value. तो a into this is the equation 3, r is 2, 2 cube is 8, 8 minus 1 7 upon r minus 1, r is 2 minus 1 is 1 is equal to 16. तो a हमें क्या मिला है? a हमें मिल गया 16/7. so this is a. so we are having a, we are having r. इसके अलावा क्वेश्चन ने पूछा है Sn. so what will be Sn? Sn का फॉर्मूला हमें पता है a into r to the power n minus 1. so r in a into r which is 2 to the power n minus 1 upon r minus 1 which is 2 minus 1 which is 1 only. so this is Sn. तो ये तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड Sn. so this is the final answer, right? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. so what is the next question? they are saying if fourth term 10th 16th terms are this x y z then prove x y z are in GP. so what are the given information? given information लिख लेता है carefully. so given information is fourth term is equal to x, 10th term is equal to y, 16th term is equal to z. as per the identities we can write fourth term is a into r cube, 10th term is a into r to the power 9 and 16th is a into r to the power 15, right? so we are having x is this, y is this and z is this, but we have to prove that x, y, z are in GP. so we have to prove that x, y and z are in GP. and हमने सीखा हुआ है कि अगर हमें तीन नंबर्स को प्रूव करना है कि वो GP में है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ द सेकंड इज इक्वल टू x इंटू जेड. तो हमें प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ द सेकंड इज x इंटू जेड. सो स्टार्ट विद द LHS कैलकुलेट कर लेते हैं. LHS क्या है यहाँ पे? वाई स्क्वायर. हमारे पास y की वैल्यू क्या है? y इज़ a इंटू आर टू द पावर 9 होल स्क्वायर. सो इट विल बी a स्क्वायर r to the power 18. now we will calculate RHS, that is x into z. x is ar cube and z is a r to the power 15. so it will become a square r to the power 18 and you can see our LHS RHS दोनों इक्वल हो गए. hence we can claim now that x, y, z are in GP. hence proved they are in GP. तो बच्चा लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, ईजिली क्वेश्चंस हो जाएंगे. This is a different question. This is completely a different question. So as per the question, what they are saying, find the sum to n terms of this sequence. Important भी है, काफ़ी पॉपुलर है. So what they are saying, find the sum to n terms of this sequence. तो Sn निकालना है, बट Sn निकालने के लिए GP होना चाहिए. तो पहले हमें ये चेक करना है ये GP है या नहीं. तो in this, in 8, 88, 888, 8888. if we find second term divided by the first term, that is 88 by 8 is 11. if we find third term by the second term, that will be 888 by 88 is 111 by 11 and you can see these two are not equal, these two ratios are not equal. hence this is not a GP. this is not a GP. अब ये GP नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें GP का ही सम आता है. AP चेक कर लो, AP है तो AP भी हमने सीखा हुआ है 10th क्लास में. सो दिस इज़ नॉट अ GP. GP तो है नहीं. अगर आप AP के लिए चेक करते हो तो बच्चा ये AP भी नहीं है, तो ना ही ये GP है ना ही ये AP. अब इसे कैलकुलेट कैसे करें? तो इसलिए ये डिफरेंट क्वेश्चन है और काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो हमें करना क्या है? हमें इसका सम फाइंड आउट करना है, Sn फाइंड आउट करना है. 8 + 88 + 888 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स. वी हैव टू कैलकुलेट अप टू n टर्म्स. ठीक है. तो ये AP तो नहीं है, GP भी नहीं है, तो फॉर्मूला तो नहीं लग सकता, बट कुछ और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं.
इसमें जो हमें कॉमन दिख रहा है कि ये 8 की सीरीज़ है, तो जितने भी जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी आगे टर्म्स है सब 8 8 8 8 ऐसे करके एक एक इंक्रीज़ होता जाएगा. सो वी कैन टेक 8 कॉमन. 8 कॉमन तो आएगा ही आएगा, इतना हमें पता है. सो वी कैन टेक 8 कॉमन. अगर हम 8 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 एंड सो ऑन, राइट. सो वी कैन टेक 8 कॉमन. अब 8 कॉमन लेने से हुआ क्या, जीपी तो अभी भी नहीं बनी, एपी तो अभी भी नहीं बनी, तो इसमें मैनिपुलेशन करनी होती है बच्चा. और वो मैनिपुलेशन ये है कि हम इसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9 से डिवाइड भी करना है ताकि वो बैलेंस्ड रहे. वैसे तो हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत थी, डिवाइड वाले की नहीं, बट बैलेंसिंग के लिए हमने डिवाइड भी किया है. मल्टीप्लिकेशन की क्यों नीड थी या ये हमारी हेल्प कैसे करता है बच्चा, ये जिस हमने जो 9 से मल्टीप्लाई किया है ये हमारी हेल्प कैसे करेगा. देखिए अब ये जो पहला वाला 9 है जो ब्रैकेट के अंदर है, दिस कैन बी रिटन एज 10 - 1. दूसरा 99 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1. नेक्स्ट 999 को वी कैन राइट 10 क्यूब माइनस 1 एंड सो ऑन. इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द लास्ट टर्म, द लास्ट टर्म विल बी nth टर्म. तो अगर फर्स्ट टर्म में 10 - 1 है, सेकेंड टर्म में 10 स्क्वायर माइनस 1 है, थर्ड 10 क्यूब माइनस 1 है, तो लास्ट टर्म विल बी 10 to the power n - 1. सो दिस इज़ द पैटर्न. अब इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी. हेल्प ये मिलेगी कि जितने भी ब्रैकेट्स है सब में 1 1 1 है, उसको साइड कर लेंगे. एंड सब में 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब ये सब है. एंड दिस इज़ नथिंग बट जीपी. तो हमने मैनिपुलेशन करने के बाद इसे जीपी में कन्वर्ट कर दिया, राइट बच्चा. तो ये जो क्वेश्चन है वो इसी प्रोसेस से सॉल्व होता है, इसलिए इसको आपको 2-3 बार रिवाइज़ करना होगा ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए. अब हम जीपी वाले टर्म्स को अलग ब्रैकेट में डाल देंगे एंड रिमेनिंग को अलग ब्रैकेट में लिख देंगे. तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/9 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब अप टू 10 to the power n, राइट. तो 10 वाले को हमने अलग डाल दिया. रिमेनिंग हर एक ब्रैकेट में 1 1 है विद द नेगेटिव. नेगेटिव को कॉमन ले लेता है तो बचेगा 1 1 1. हाउ मैनी टाइम्स, जितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है. तो ये जो 1 1 1 है ये हमारे पास आया है n टाइम्स, राइट. ये हमारे पास n टाइम्स आ गया है. अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे. जस्ट अ सेकेंड. तो ये इसको हम हटा देते हैं. तो नाउ वी विल सॉल्व. सो हियर वी कैन से दिस इज़ अ जीपी. ये जीपी हमें मेंशन करना है. विद फर्स्ट टर्म इज़ 10, कॉमन रेशियो इज़ ऑल्सो 10 एंड नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है. तो यूजिंग द जीपी सम टू n टर्म्स फॉर्मूला इट विल बिकम a विच इज़ 10 into r which is 10 to the power n minus 1 upon r minus 1 minus here 1 1 1 1 1 plus n times. so 1 को n times ऐड कर रहे हैं, it will become n. 8/9 को अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो it will become 8 upon 10 minus 1 9 into 9 81 into 10 to the power n minus 1 minus 8n/9. so this is the final answer. This is the final answer, right. इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n. तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा. काफ़ी पॉपुलर है. 8 की सीरीज़ है, मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन इस टाइप के, 7 की सीरीज़, 6 की सीरीज़, कोई भी एक सीरीज़ आ सकती है. तो इसमें वही है, कॉमन लो और 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, 9 से ही, क्योंकि 9 ही हमारी हेल्प करता है ईजिली 10 या 10 स्क्वायर या 10 की जीपी बना के. एंड जो रिमेनिंग है वो 1 ही बचता है, सेम बचता है, इसलिए ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. तो हमें 9 की ही हेल्प लेनी है, 9 से ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in this question number 9, they are saying find 4 numbers forming a GP in which the third term is greater than the first term by 9, यानी कि A3 is equal to A1 plus 9 and the second term is greater than fourth by 18. so this is the given information. so how can we write बच्चा? we can write this as A3 minus A1 is equal to 9 and also now we can use the formula A3 is AR square
minus a1 is a is equal to 9. So we will take this as equation 1. In this, a2 minus a4 is equal to 18. So a2 is ar and a4 is ar cube is equal to 18. Is equal to 18. We will take this as second equation. हमने सीखा हुआ है कि जीपी में जब भी इक्वेशंस आती है तो हम उनको डिवाइड करते हैं, सबट्रैक्ट या ऐड नहीं करते, जो ईपी में क्या करते थे डिवाइड. तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे. हमें निकालना क्या है, हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है. सो नाउ वी विल फाइंड सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट. सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट. तो LHS को पहले डिवाइड कर लेते हैं. तो सेकेंड के LHS में आप देख सकते हैं कि a इंटू आर कॉमन ले सकते हो, तो ए आर कॉमन ले लो एंड द रिमेनिंग विल बी 1 माइनस आर स्क्वायर. And the LHS of the first, you can take a common and remaining is r square minus 1 is equal to 18 by 9, right? तो बच्चा देखो क्या क्या कैंसिल हुआ. 18 एंड 9 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स. यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है ये सिमिलर है, सेम नहीं है, माइनस का डिफरेंस है तो -1 बचेगा. a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया, माइनस आर इज इक्वल टू 2. दैट मीन्स r इज इक्वल टू -2. हमें r मिल गया -2 बच्चा. r को किसी में भी पुट करके आप a कैलकुलेट कर सकते हो. तो मान लो इक्वेशन 1 में अगर हम r को 2 पुट करते हैं तो यू विल गेट 4a माइनस a 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि a 3 आ जाएगा. ठीक है, ईजिली कुछ नहीं करना है. इक्वेशन 1 में r को पुट करो, सॉल्व करो, a मिल जाएगा. हमें टर्म्स निकालनी है 4 टर्म्स. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म्स क्या होती हैं, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म विल बी फर्स्ट टर्म इंटू आर एंड द नेक्स्ट विल बी a सेकेंड टर्म इंटू आर. तो आर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, टर्म्स मिलती जाएगी. तो फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म विल बी 3 इंटू -2 यानी कि 6. नेक्स्ट विल बी अगेन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +12, अगेन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24. सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो दीज आर दी रिक्वायर्ड टर्म्स. क्लियर? दिस इज समथिंग टू मार्क. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग if pth, qth and rth terms of a GP are a, b and c then prove this thing. तो एक एक्सप्रेशन है अजीब सा, वो हमें प्रूव करना है. तो सबसे पहले बच्चा गिवन इन्फॉर्मेशन, वी विल राइट गिवन इन्फॉर्मेशन. सो व्हाट आर द गिवन इन्फॉर्मेशन, द pth term is given as small a, the qth term is given as small b and the rth term is given as small c, right? अब हमें करना क्या है, ये गिवन है और कुछ हमें प्रूव करना है. तो इसको अभी के अभी हम फॉर्मूला वाइज भी लिख लेते हैं. सो pth टर्म फॉर्मूला वाइज क्या बनता है, a इंटू आर टू द पावर p माइनस 1. हेयर वी आर टेकिंग कैपिटल A एंड कैपिटल R ताकि मिक्स ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि स्मॉल a स्मॉल r क्वेश्चन ने यूज़ किया है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो है वो ये AR नहीं है, तो इसलिए हम कैपिटल यूज़ कर लेंगे. सो pth टर्म विल बिकम a इंटू आर टू द पावर p माइनस 1 एज पर द फॉर्मूला एंड दिस इज गिवन एज स्मॉल a. qth will become a into r to the power q minus 1 and this is given as small b. rth term is small a into r to the power r minus 1 and this is given as small c. राइट, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद द LHS जो हमें प्रूव करना है. वी हैव टू प्रूव a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q. Now we will put their values. So what is small a? Small a is given as capital A into capital R to the power p minus 1. ये small a की वैल्यू है. From here small a की वैल्यू. अब इसकी पावर है q माइनस आर, ये q माइनस आर अलग से है. ठीक है, अब स्मॉल b की वैल्यू लिखेंगे. स्मॉल b की वैल्यू क्या है, ये स्मॉल b की वैल्यू है. तो a इंटू आर टू द पावर q माइनस 1, ये सिर्फ स्मॉल b की वैल्यू है. अब इसकी पावर है r माइनस पी, तो इसकी पावर यहाँ पे आएगी r माइनस पी इंटू स्मॉल c विच इज़ a इंटू आर टू द पावर r माइनस 1. नाउ द स्मॉल c होल टू द पावर p माइनस क्यू. सो यहाँ पे p माइनस क्यू आएगा. तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हमें केयरफुली सॉल्व करना है. इसका आंसर 1 आना चाहिए, यानी कि सब कुछ कैंसिल हो जाना चाहिए. तो सॉल्व करते हैं. तो बच्चा ये a इंटू आर है, तो ये जो पावर है ये a और r दोनों को अलग अलग मिल जाएगी. तो a को मिलेगी a टू द पावर q माइनस आर एंड कैपिटल R को मिल जाएगी, जिसके पास ऑलरेडी p माइनस 1 है, तो q माइनस आर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. नाउ द सेकेंड ब्रैकेट कैपिटल A इंटू आर टू द होल टू द पावर r माइनस पी इंटू कैपिटल R, जिसकी ऑलरेडी q माइनस 1 पावर है, तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी ये पावर r माइनस पी. सो q माइनस 1
into r minus p. Now same for the next bracket, capital A to the power p minus q into capital R to the power r minus 1 into p minus q. तो इसे अब हमें सॉल्व करना है. तो बच्चा यू कैन सी दैट दे आर 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स in which 3 are containing base A and 3 are containing base R. So in multiplication if bases are same तो पावर ऐड होती है, तो A वाले को कंबाइन कर लेते हैं, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि A to the power Q minus R from this प्लस पावर में R minus P प्लस फ्रॉम दिस P minus Q इंटू कैपिटल R. अब कैपिटल R की पावर्स आ जाएंगी, तो ये पहली वाली पावर है ये सॉल्व करके लिखेंगे हम, इसको सॉल्व करके लिखेंगे, इसको सॉल्व करके लिखेंगे, इसको सॉल्व करके लिखेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे. तो ये आ जाएगा आपके पास पी क्यू माइनस पी आर, केयरफुली करना है, काफ़ी कुछ आएगा, माइनस क्यू प्लस आर. तो ये पहले से आया है. अब दूसरे ब्रैकेट पे आते हैं, प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी. नाउ द लास्ट ब्रैकेट, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू. अब पावर्स देख लेते हैं, अगर कुछ कैंसिल होता है तो कुछ कैंसिल कर देंगे. आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, एवरीथिंग गॉट कैंसिल. सो इट विल बिकम ए टू द पावर 0. नाउ आर की पावर देख लेते हैं, पी क्यू कैंसिल हो गया हमारा क्यू पी से, वेज क्यू पी इज हेयर. पी आर कैंसिल हो गया आर पी से, माइनस क्यू कैंसिल हो गया प्लस क्यू से, प्लस आर कैंसिल हो गया माइनस आर से, क्यू आर क्यू से, एंड प्लस पी माइनस पी से. तो अगेन यहाँ पे भी सब कुछ कैंसिल हो गया, आर टू द पावर 0 एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 एंड विच इज आर एच एस, हैंस प्रूव्ड विच इज आर एच एस. दिस इज समथिंग 3 marker, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज if first and nth term of a GP is this and this respectively and P is the product of n terms, then prove this thing. तो हमें कुछ प्रूव करना है, तो पहले given information. So what are the given information? The given information, first term is given as A and nth term is given as small b. So nth term को as per the formula we can write AR to the power n minus 1 is equal to B. And P is the product of n terms. P is product of n terms. Product of n terms का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, सम टू n terms का होता है. Product of n terms का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, इसको कैलकुलेट करना है. सो प्रोडक्ट ऑफ n terms का मतलब क्या है? द फर्स्ट टर्म इंटू द सेकेंड टर्म इंटू द थर्ड टर्म टिल द लास्ट टर्म. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट GP, तो GP में फर्स्ट टर्म होती है A, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट GP. सेकेंड टर्म होता है AR, थर्ड टर्म होता है AR स्क्वायर. ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म विल बी AR टू द पावर n माइनस 1. तो बच्चा A कितने हैं? सम में एक एक A है, तो A उतने हैं जितनी टर्म्स हैं. कितनी टर्म्स हैं? n. तो A सबके उठा के एक ब्रैकेट में लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, और ये कितने हैं? n टाइम्स. वाई दे आर n टाइम्स? बिकॉज n टर्म्स के लिए हमने लिखा है. ना रिमेनिंग R बचा है, R स्क्वायर बचा है, R क्यूब बचा है, ये सब कुछ रिमेनिंग है टिल R टू द पावर n माइनस 1. ये हमने सीखा हुआ है बच्चा. इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेसिस आर सेम तो पावर्स ऐड होती हैं. तो A को n टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इट विल बिकम A टू द पावर n, एंड ये जो सेकंड है ये आपका आ जाएगा R टू द पावर, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n माइनस 1. अब ये जो R की पावर है ये भी एक सीरीज़ है, सीरीज़ यानी कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं एडिशन में. इसको कैसे सॉल्व करें? तो नाउ वी विल राइट दैट हियर this power 1 plus 2 plus 3 till n minus 1 is sum of n. क्या है ये? देखो क्या ये AP है? Yes, this is an AP. ये GP नहीं है बट ये AP है. is sum of n AP. ये AP का सम है, जहाँ पर with the first term is, what is the first term? 1. What is the common difference? 1. What is the number of terms here? How many terms are there? कितनी टर्म्स है? देखो ये जो स्टार्ट हुआ है 1 से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, टिल n माइनस 1 है. अगर ये होता मान लो 1 2 3 टिल 11, तो कितनी टर्म्स होती है? 11. अगर ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 15, तो कितनी टर्म्स होती है? 15. तो ये क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n माइनस 1. तो ये कितनी टर्म्स है? n माइनस 1, क्योंकि नेचुरल नंबर्स है, 1 से स्टार्ट हुए हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, तो जो लास्ट है उतनी ही टर्म्स है, यानी कि ये कितनी है? n माइनस 1. हैंस नंबर ऑफ टर्म्स हेयर n माइनस 1.
नंबर ऑफ टर्म्स n लिख के आ जाते हैं कुछ बच्चे, सो बी केयरफुल, नंबर ऑफ टर्म्स इज n, इट्स नॉट, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स इज n-1, इट्स नॉट n. सो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहाँ पे n-1 है. नाउ वी विल यूज़ द फॉर्मूला. तो एस एन निकालना है. एस एन का फॉर्मूला ए पी वाला, क्योंकि ए पी है. एस एन में आपने किया होगा, ए पी में फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, द फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, राइट. यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म है हमारे पास n-1. तो लास्ट टर्म है a या d है, सबको पुट करके हम एस एन निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एस एन क्या आ जाएगा, एस एन नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ n-1/2 इंटू a विच इज़ 1 प्लस l विच इज़ n-1. सो इट विल बिकम n-1/2 और यहाँ पे ये n 1 से 1 कैंसिल, ओनली n. तो ये हमें एस एन मिला है. एस एन मतलब हमें ये इसका सम मिला है, इसका सम मिला है. तो यहाँ पुट कर देते हैं r की पावर में. तो a टू द पावर n, r टू द पावर, ये जो सम आया है, और ये कितना आया है n इंटू n-1/2. ये किसकी वैल्यू है बच्चा, ये वैल्यू आई है हमारी p की. p इज़ द प्रोडक्ट. तो ये हमें क्या मिल गया, p प्रोडक्ट. p हमें मिल गया है. हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस थिंग. सो स्टार्ट विद द LHS p स्क्वायर. सो नाउ LHS विच इज़ p स्क्वायर. सो व्हाट विल बी p स्क्वायर हेयर, p स्क्वायर कितना आ जाएगा, p स्क्वायर का मतलब है p की वैल्यू पुट करना एंड होल स्क्वायर. सो a टू द पावर n, r टू द पावर n, n-1/2 होल स्क्वायर. तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, यू विल गेट a टू द पावर 2n, r to the power n into n-1. So this is our LHS. Now we will calculate RHS. What is RHS here? AB whole to the power n, and B क्या है, B ये है. तो A ही है, B की वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखते हैं RHS क्या आता है. So RHS is A into B whole to the power n. So A is A but B हमारे पास है A into R to the power n-1 whole to the power n, sorry ऐसे. तो ये a स्क्वायर बन जाएगा एंड r टू द पावर n-1 होल टू द पावर n. तो जब आप होल टू द पावर n करेंगे, a टू द पावर 2n, r टू द पावर n इंटू n-1. सो यू कैन सी नाउ दिस इज इक्वल टू LHS. हमारे ये दोनों इक्वल आ गए हैं. इक्वल आ गए तो हैंस प्रूफ. सो व्हाट इज़ द फाइनल कंक्लूजन, दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू b होल टू द पावर n. हैंस प्रूफ. तो ये हमने प्रूफ कर दिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर है, आ जाता है 3 मार्कर या 4 मार्कर में. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज दिस, बट दे आर सेइंग शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ GP टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th to 2nth टर्म इज दिस. क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ GP to sum of terms from n+1th to 2nth. We have to prove the ratio of sum of first n terms to this is equal to 1/r to the power n. ये हमें प्रूव करना है, राइट. तो LHS से स्टार्ट करते हैं. LHS क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an. दिस इज द मीनिंग ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1. n+1 से सम लेते हुए कहाँ तक, 2n तक. दिस इज आवर LHS, राइट. अब इसको लिखें कैसे, s की टर्म्स में. तो a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an हमें पता है, इसको तो ऐसे लिखते हैं, बट डिनोमिनेटर को कैसे लिखें. तो डिनोमिनेटर जो है, इस टाइप का हमने एक और क्वेश्चन किया था. मान लो बच्चा लिखा हुआ है a6 a7 टिल a12. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि 1 to 6 मिसिंग है लेकिन टिल 12 है, तो s12 माइनस 1 to 6. ये हमने एक पहले क्वेश्चन किया है. अगर आप स्टार्टिंग से ये वीडियो देखते आ रहे हो तो ये आपको समझ में आ गया होगा. सिमिलरली अगर हमारे पास लिखा हुआ है a10 a11 टिल से a16, तो वी कैन राइट दिस एज s16, क्योंकि ये 16 तक गया बट 1 to 9 मिसिंग है जो इसमें इंक्लूड हो गए हैं, तो माइनस s9. इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो ये डिनोमिनेटर है 2n तक गया है, तो s2n माइनस 1 to n मिसिंग है, तो माइनस sn. तो ये हमारा LHS बन गया. अब हम इनकी आइडेंटिटीज़ यूज़ कर लेंगे एंड फिर ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. दिस इज़ ऑल्सो पॉपुलर क्वेश्चन. तो Sn क्या है, Sn है एज पर द फॉर्मूला, Sn इज़ a इंटू r टू द पावर n-1 अपॉन r-1 डिवाइडेड बाई S2n.
S2n का भी सेम फॉर्मूला है, बट S2n है, n की जगह 2n आ जाएगा, यानी कि a इंटू आर टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. दिस इज S2n माइनस Sn. तो Sn तो सेम है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. ठीक है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने इनकी आइडेंटिटीज़ पुट की है. अब सॉल्व कर लेते हैं. तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, जो डिनोमिनेटर है उसमें से कॉमन ले लेंगे. तो अगर आप देखो r माइनस 1 दोनों में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, a भी दोनों से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा. तो क्या क्या बचा है, r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस r टू द पावर n माइनस 1. तो ये बचा हुआ है. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस r टू द पावर n प्लस 1. तो आपका माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. सो r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r टू द पावर 2n माइनस r टू द पावर n, वी कैन टेक r टू द पावर n कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. r टू द पावर n आपका डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा. अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपका बचेगा r टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, डिनोमिनेटर बचा. जो r टू द पावर 2n है ना, वो r टू द पावर n इंटू r टू द पावर n होता है. तो अगर आप एक कॉमन ले लोगे, एक बचेगा, और इसमें से तो कॉमन ले ही लिया है, तो इसमें से 1 बचेगा. राइट, तो ये हमने कॉमन ले लिया. न्यूमरेटर एज इट इज़. अब कुछ कैंसिल होगा तो हम कैंसिल कर देंगे. न्यूमरेटर में r टू द पावर n माइनस 1 है, तो ये आपका कैंसिल हो गया. यू विल गेट 1 बाय r टू द पावर n. एंड यही आपको प्रूव करना था, यही आपका रेशियो है, विच इज़ इक्वल टू RHS. हैंस प्रूव्ड, विच इज़ इक्वल टू RHS. ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है. ये क्वेश्चन आपको रिपीट करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एंड डी आर इन GP शो दैट दिस. तो कोई एक्सप्रेशन है जो हमें प्रूव करना है ए बी सी GP में. ए बी सी एंड डी आर इन GP. तो GP का रिजल्ट हम यूज़ करेंगे इफ़ दे आर इन GP एंड से ए इज़ द फर्स्ट टर्म. लेट GP है ना, तो हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट है, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म इज़ ए. तो अगर फर्स्ट टर्म ए है तो B इज़ द सेकेंड टर्म, सो B कैन बी रिटन एज AR. C विल बी द थर्ड टर्म AR स्क्वायर एंड D विल बी द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ AR क्यूब. तो जब भी 3-4 टर्म्स दी होती है इस पैटर्न में लिख लेते हैं, ईजिली क्वेश्चन हो जाता है. हमें प्रूव करना है. स्टार्ट विद द LHS. सो LHS इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. नाउ वी विल पुट देयर वैल्यूज़. सो बच्चा, व्हाट इज़ a तो a ही है, a को रिप्लेस नहीं करना है. आपको रिप्लेस करना है b को AR से, c को AR स्क्वायर से एंड d को AR क्यूब से. a ही रहेगा. So B is AR whole square, C is AR square whole square, right? Into B is AR whole square, C is AR square whole square and D is AR cube whole square. कुछ नहीं किया, वैल्यूज़ पुट किया, कुछ भी नहीं किया. ये जो है दोनों ब्रैकेट्स, इसमें B एंड C एंड D की वैल्यूज़ पुट किया. अब इसको केयरफुली सॉल्व करना है. तो देखो, पहले वाला a स्क्वायर ही रहेगा. ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर r स्क्वायर. ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर r टू द पावर 4. Now the second bracket a square r square, this is a square r to the power 4 and this will become a square r to the power 6. ठीक है, एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स हैं ये. एक्सपोनेंट्स रिजल्ट आपने किए होंगे छोटी क्लासेस में, तो वही यूज़ कर रहे हैं. नाउ वी कैन, इफ़ वी कैन टेक एनीथिंग कॉमन, तो हम कॉमन ले लेंगे. यू कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. रिमेनिंग विल बी 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4 एंड फ्रॉम द सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा एंड द रिमेनिंग विल बी 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4. ठीक है, r टू द पावर 6 से अगर r टू द पावर 2 कॉमन लेते हैं तो r टू द पावर 4 बचता है. राइट, अब बचा ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा एंड ये और ये मल्टीप्लाई होके a टू द पावर 4 इंटू आर स्क्वायर बन जाएगा. तो ये LHS हो गया. जितना हम सॉल्व कर सकते थे हमने सॉल्व कर लिया. अब हम RHS को सॉल्व कर लेंगे. RHS है हमारे पास AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर. तो इसमें भी वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे. अगर सेम आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा. B, C एंड D की वैल्यूज़ पुट करनी है. A ही रहेगा. तो B क्या है हमारे पास, AR, B इज़ AR, C इज़ AR स्क्वायर प्लस C इज़ AR स्क्वायर एंड D इज़ AR क्यूब. तो इनकी वैल्यूज़ पुट की है. कुछ नहीं किया बच्चा, वैल्यूज़ पुट किया केयरफुली. देखो, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो इट विल बिकम a स्क्वायर r, इट विल बिकम a स्क्वायर r क्यूब. मल्टीप्लाई करके लिखा है, ये मल्टीप्लाई करके ये बना, ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर r टू द पावर 5 होल स्क्वायर
अब इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं, अगर कुछ कॉमन दिखता है तो ए स्क्वायर आर कॉमन दिखा है तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 होल स्क्वायर। अब दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे देते हैं तो ये बनेगा ए टू द पावर 4 आर स्क्वायर एंड इट इज़ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 होल स्क्वायर एंड नाउ यू कैन सी दिस इज नथिंग बट LHS, हैंस प्रूव्ड। तो फाइनल आंसर हम लिख देंगे देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू डी होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हो गया काइंड ऑफ रिजल्ट फॉर GP, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को करने के लिए एक रिजल्ट यूज़ होगा 10th क्लास का। तो एक रिजल्ट है उसको रिकॉल कर लेते हैं, इफ़ यू रिमेंबर 10th या 9th में किया होगा या मे बी 8th में किया होगा। सो व्हाट वाज द रिजल्ट दैट इफ़ वी आर हैविंग रूट्स होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ज़ीरोस। सो इफ़ वी आर हैविंग रूट्स एज अल्फा एंड बीटा then the quadratic equation will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. That is x square minus sum of roots into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये 8th या 9th में आपने किया होगा कि अगर हमारे पास रूट्स हैं देन हाउ कैन वी फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यूजिंग दिस प्रोसेस वी कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ये रिजल्ट यूज़ होने वाला है। तो अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब इस रिजल्ट को हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन दे आर सेइंग if AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. So AM and GM of roots of a quadratic equation are given as 8 and 5 and we have to obtain the quadratic equation. So roots हैं कुछ, so consider कर लेते हैं, let alpha and beta be roots. So it is given बच्चा AM and GM roots के दिए हुए हैं 8 and 5. So AM of alpha and beta is given as 8 and GM of roots that means alpha and beta is given as 5. तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में किया होगा। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है अल्फा और बीटा के लिए निकाल रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन विच इज़ गिवन एज 8 एंड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा, ये तो आज ही सीखा है हमने, विच इज़ गिवन एज 5। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया 16, 2 को वहाँ ले गए एंड यहाँ से हमें मिल गया अल्फा इंटू बीटा एज 25, स्क्वायर 1 वहाँ ले गए। तो बच्चा एक तरीके से हमें सम भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया, हमें क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल यूज़ द सेम फॉर्मूला जो अभी हमने रिकॉल किया है एंड उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। दिस इज समथिंग 2 मार्क का क्वेश्चन। सो रिक्वायर्ड quadratic equation is x square minus sum of the roots into x plus alpha beta is equal to 0. So now we will put their values, x square minus sum is 16x plus 25 is equal to 0. This is the final answer, 2 mark. Now the next question, question number 15, ये भी सेम पैटर्न पर बेस्ड है लेकिन डिफरेंट कुछ डिफरेंट स्टेप्स हैं बट पैटर्न वही है। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, दे आर सेइंग A and G be AM and GM respectively between 2 positive numbers, prove that the numbers are 10। तो नंबर्स हमें प्रूव करने हैं, नंबर्स नहीं हमारे पास और उनके अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन A और G से रिप्रेजेंट किए गए हैं। सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी अल्फा एंड बीटा एंड इन्हीं के AM GM गिवन है तो हम वो लिख लेते हैं। सो व्हाट इज़ द गिवन, AM ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ये कितना दिया हुआ है, A इज़ AM एंड G इज़ GM बिटवीन 2 नंबर्स एंड जो वो नंबर्स है उन्हीं को हमने अल्फ़ा बीटा लिया है। तो AM ऑफ अल्फ़ा बीटा इज़ कैपिटल A एंड GM ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इज़ गिवन एज कैपिटल G, राइट। नाउ वी हैव द आइडेंटिटीज़। सो AM का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स डिवाइडेड बाय 2 और ज्योमेट्रिक मीन का रूट ऑफ अल्फ़ा
बीटा इज़ जी। तो बच्चा सेम प्रोसेस, यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, एंड यहाँ से वी विल कैलकुलेट अल्फ़ा बीटा, जो कि आ गया जी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या किया हमने, एज पर द क्वेश्चन ए एम एंड जी एम बिटवीन टू नंबर्स इज गिवन, हमने उन नंबर्स को अल्फ़ा बीटा कंसिडर किया, ए एम जी एम का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से सम ऑफ नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल लिए। सम एंड प्रोडक्ट का रिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हम यहाँ पे अब कंसिडर करने वाले हैं। सो कंसिडर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके कुछ नहीं पूछा है, लेकिन हम उसकी हेल्प ले रहे हैं। सो कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से कंसिडर कर रहे हैं जिसके रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है। जो अल्फ़ा बीटा नंबर्स थे, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा ये दो नंबर्स कंसिडर कर लिए। तो वो अगर अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इन प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इनकी दोनों की वैल्यूज़ है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, अल्फ़ा बीटा भी है। तो अगर हम इसको पुट करते हैं तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बट हमें इक्वेशन निकालनी नहीं है, हमें क्या निकालना है, नंबर्स निकालना है, प्रूव करना है कि ये नंबर्स है। नंबर्स कौन से, जो हमने अल्फ़ा बीटा कंसिडर किया, यानी कि हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फ़ा बीटा हमने कंसिडर कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चाहिए जो इसके रूट्स हैं, तो बेसिकली हमें इसके रूट्स चाहिए। रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब होता है इसका सॉल्यूशन। जिसका सॉल्यूशन होता है, जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है, उन्हीं को तो रूट्स बोलते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। जो भी सॉल्व करके यहाँ से आएगा वो एक्स का आंसर रूट्स होंगे, और रूट्स मतलब अल्फ़ा बीटा होंगे, और अल्फ़ा बीटा ही हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने सीखा हुआ है ये भी 10th में। तो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमने सीखा हुआ है कि इसको सॉल्व करने के लिए वी कैन यूज़ द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है क्लास 10th में, तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। बट इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, वो हम लिख लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो हेयर स्मॉल a, अगर हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करते हैं, सो व्हाट विल बी स्मॉल a द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 1, व्हाट इज़ स्मॉल b द कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज़ माइनस 2a, एंड व्हाट इज़ स्मॉल c द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विच इज़ जी स्क्वायर। तो ये पुट करके हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन यानी कि x की वैल्यू क्या मिलेगी, एज़ पर द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करनी है ABC की। तो प्लस 2a माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2a। सो 2 इंटू स्मॉल a विच इज़ 1। तो क्या आ जाएगा ये 2a प्लस माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2। नाउ यू कैन सी वी कैन टेक 4 कॉमन फ्रॉम द स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट से बाहर आके स्क्वायर रूट 4 2 बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2। ओवर और 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज a प्लस जी इंटू a माइनस जी। तो ये किसकी वैल्यू है, x की। x का मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब रूट्स। रूट्स हमने लिए थे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा का आंसर है। अल्फ़ा बीटा कोई हमने नंबर्स कंसिडर किया है, हमें नंबर्स जो निकालने थे। एंड अगर आप देखो क्वेश्चन में, तो हमें नंबर्स ये प्रूव करने हैं, और यही एज इट इज़ आ गए हैं, यानी कि एक प्लस वाला होगा, एक माइनस वाला होगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस जी इंटू a माइनस जी। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द सॉल्यूशन। हम ऐसे इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के काफ़ी मेथड है बच्चा, 3-4 मेथड है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल भी है, और भी डिफरेंट मेथड है। बट हम इस मेथड से करते हैं क्योंकि इसमें 10th एंड 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, जो ऑलरेडी तुम बच्चों ने किया हुआ है, राइट। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, एक बार करने से समझ में नहीं आता है, तो 2-3 बार आपको करना होगा ताकि अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाए एंड एग्जाम में भी आप कर पाएँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल्सो सिमिलर टू दैट क्वेश्चन, सेम पैटर्न पर बेस्ड है। तो क्या बोला हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। बच्चा
ये उसी पैटर्न पे बेस्ड है। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें भी ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन का रोल आ गया। तो जब ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन दोनों का रोल आ जाता है, कोई रिलेशन गिवन है, तो यही पैटर्न बन जाता है जो अभी हमने सीखा है। तो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर 10। सो लेट द नंबर्स बी अल्फा एंड बीटा। So what is given? The given is sum of these two numbers, यानी कि alpha plus beta is equal to 6 times of their geometric mean, right? So what is the given information? The given information is that sum of numbers जो हमने consider किया है is equal to 6 times of their geometric mean. तो sum of numbers क्या बन गया, alpha plus beta and 6 times of their geometric mean. geometric mean क्या होता है, रूट ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट अर्थमेटिक मीन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज कैपिटल ए एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज कैपिटल जी। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो फ्रॉम हेयर अल्फा प्लस बीटा आ गया 2a। सेम प्रोसेस, पुराना वाला काम। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है रूट ऑफ अल्फा बीटा विच इज़ गिवन एज स्मॉल जी, या हमने कंसिडर किया है, तो यहाँ से हमें अल्फा बीटा मिल गया g², राइट। अब देखिए अच्छे से, ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है इसमें अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या मिला है, 2a। तो इसको अभी मानते हैं हम इक्वेशन 1 से, दिस इज इक्वेशन 1। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा को हम यूजिंग दिस, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे हमें 2a मिला है, तो इक्वेशन 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा को 2a से रिप्लेस कर देते हैं। 6 टाइम्स रूट ऑफ अल्फ़ा बीटा विच इज़ कैपिटल जी, तो इसको हम g से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमें एक रिलेशन मिल गया दैट a इज़ इक्वल टू 3g। हमें a और g का एक रिलेशन मिल गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, पहले नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर्स कैलकुलेट करने का सेम प्रोसेस है कि कंसिडर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, नाउ द सेम प्रोसेस जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो x² माइनस सम ऑफ रूट्स इज़ व्हाट, 2a इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ व्हाट, g²। तो ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, सेम प्रोसेस, माइनस बी प्लस माइनस, सेम पुराना वाला काम कर रहे हैं इसलिए इसे स्पीड में कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है अच्छे से और समझ में आया तो ये भी आप कर लेंगे। सो माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2c, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो ये बना 2a एंड इट विल बिकम 4a² माइनस 4g² अपॉन 2। नाउ अगेन रूट से 4 कॉमन आएगा और ओवर और 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट a प्लस माइनस a² माइनस g²। तो ये x का आंसर है। x का मतलब इसके रूट्स हैं, रूट्स मतलब अल्फ़ा एंड बीटा है। तो बच्चा अल्फ़ा एंड बीटा की अगर हम अलग अलग वैल्यूज़ लिखें तो अलग अलग वैल्यूज़ क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि एक प्लस वाला होगा, से अल्फ़ा इज़ द +1 विच इज़ a प्लस रूट ऑफ a² माइनस g²। एक प्लस वाली वैल्यू है, 2 वैल्यू है ना ये, एक माइनस वाली होगी, बीटा मान लो माइनस वाला है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये 2 वैल्यू है। तो एक प्लस वाला हो गया और माइनस वाला क्या होगा, a माइनस रूट ऑफ a² माइनस g²। तो ये हमारे 2 आंसर आ गए हैं अल्फ़ा एंड बीटा के, मतलब दोनों हमें अलग अलग नंबर्स मिल गए हैं। हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव शो दैट द नंबर्स आर इन दिस रेशियो। हमें नंबर्स का रेशियो प्रूव करना है, राइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले तो उस क्वेश्चन को हटाते हैं। तो हमें रेशियो प्रूफ करना है नंबर्स का, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है अल्फ़ा बाय बीटा। वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द नंबर्स। सो अल्फ़ा बीटा क्या आ गया, a प्लस अंडर रूट ऑफ a² माइनस g² अपॉन a माइनस अंडर रूट ऑफ a² माइनस g²।
लेकिन जो हमें प्रूफ करना है बच्चा उसमें ए जी नहीं है, वो आंसर डायरेक्ट है नंबर्स में। तो कोई ऐसा रिजल्ट जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, एंड येस दिस इज़ द रिजल्ट जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी। तो इसको अब हम यूज़ करने वाला है कि ए इज़ 3 टाइम्स ऑफ जी, तो हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। सो ए की वैल्यू कहाँ कहाँ पुट होएगी, यहाँ पुट होगी, यहाँ पुट होगी, यहाँ पे पुट होएगी और यहाँ पुट होएगी। ए कितना गिवन है, ए गिवन है 3g, तो ए को हम रिप्लेस कर देते हैं 3g से, तो इट विल बिकम 3g प्लस ए स्क्वायर यानी कि 9g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 3g माइनस 9g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो बच्चा ये आ गया हमारा 3g एंड दिस इज़ प्लस 8g स्क्वायर दैट विल बी 2√2g क्योंकि रूट में आएगा, एंड 3g माइनस 2√2g, यू कैन सी g से g ओवरऑल कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2, और यही रेशियो आपको प्रूफ करना था। यू कैन सी यही रेशियो आपको प्रूफ करना था, हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ दिस, हैंस प्रूव्ड। तो ये हैवी क्वेश्चंस है, 5 मार्कर टाइप्स के हैं, और ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे तभी आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे, हैंस प्रूव्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम कैटेगरी, AM GM का कुछ रिजल्ट है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ प्रूव करना है। द रेशियो ऑफ AM एंड GM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज दिस, of 2 positive numbers A and B is this, show that the ratio of the numbers is this. So what is the given? The given is ratio of AM and GM of 2 numbers, यानी कि AM of A and B, GM of A and B, इनका रेशियो दिया है इक्वल टू M is to N, M by N, and we have to prove ratio of the numbers यानी कि A by B is equal to M plus root of M square minus N square डिवाइडेड बाय m माइनस रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सेम प्रोसेस, क्या करने वाले हैं, नंबर्स कंसिडर करेंगे, AM GM कंसिडर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमें नंबर्स मिलेंगे, एंड देन हम वहाँ से कुछ रिजल्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट A इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B एंड G इज़ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है A प्लस बी बाई 2, तो ये मिल गया हमें स्मॉल a, एंड यहाँ से हमें मिल गया A प्लस बी एस 2a। सेम प्रोसेस, सेम वर्क जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस टू प्रीवियस में भी किया है। G होता है ज्योमेट्रिक मीन जिसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ AB, तो ये होगा स्मॉल g, सो AB विल बिकम g स्क्वायर। ऑल्सो हमें क्या गिवन है, AM GM का रेशियो, तो AM स्मॉल a, GM इज़ G इज इक्वल टू M इज़ टू N, तो ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये बाद में काम आएगी। अब बच्चा हम क्या करने वाले हैं, लेट, इसमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी नंबर्स है A एंड B, सो कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha and beta, whose roots are alpha and beta, सॉरी स्मॉल a एंड स्मॉल b, क्योंकि क्वेश्चन है स्मॉल a एंड स्मॉल b, ये दो नंबर्स है ना, तो हमें यही कंसिडर करना है, स्मॉल a एंड स्मॉल b। कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are a and b is, या as, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स a and b इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वैल्यूज पुट कर देते हैं, x स्क्वायर सम इज़ 2a इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज g स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है बच्चा x के लिए, तो सेम प्रोसेस, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस 4ac यानी कि 4g स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये इतने 2-3 क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया, अब तुम्हें अच्छे से आ गया होगा। ओवरऑल 4 कॉमन आएगा रूट से और फिर 2 कॉमन आके ये बन जाएगा a प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। तो ये x की वैल्यू यानी कि रूट्स की वैल्यू, तो ये रूट्स की वैल्यू आ गई। तो इसको अलग अलग लिखते हैं, तो a आ गया हमारे पास एक प्लस वाला, एंड b आ गया हमारे पास माइनस वाला, या आप आगे पीछे कर सकते हो। तो एक माइनस वाला एक प्लस वाला है। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें इनका रेशियो प्रूफ करना है। तो अगर ये नंबर्स है तो अब रेशियो क्या होगा, इनको डिवाइड कर देते हैं। सो देयरफॉर, सो नाउ a by b मीन्स a प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर
माइनस जी स्क्वायर अपॉन ए माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, राइट। लेकिन दिस इज़ नॉट द आंसर। आंसर ए जी की फॉर्म में नहीं, एम एंड एन की फॉर्म में। हमने ये कंडीशन यूज़ नहीं की। एक रिजल्ट गिवन है ना ए जी में, तो ये यूज़ नहीं किया, तो वी विल यूज़ दिस रिजल्ट। सो व्हाट इज़ द गिवन? द गिवन इन्फॉर्मेशन इज़ ए बाई जी इज इक्वल टू एम बाई एन। तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो ए की निकाल ली, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? एम बाई एन इंटू जी। तो हम ये वैल्यू इसमें यूज़ कर देंगे, यानी कि जहाँ जहाँ ए है ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चा ए क्या दिया है? एम बाई एन इंटू जी प्लस ए स्क्वायर दैट इज़ एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन एम बाई एन इंटू जी। अब इसको केयरफुली सॉल्व करना है और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखो क्या क्या है। एक तो हम जी स्क्वायर रूट से कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन गया हमारा एम बाई एन जी, और जी स्क्वायर कॉमन लेंगे रूट से तो जी बचेगा, जी आएगा बाहर। क्या बचा? एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम बाई एन जी माइनस जी स्क्वायर कॉमन लिया बाहर, जी आएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1। अब एलसीएम ले लेंगे एंड जी कॉमन आ जाएगा ओवरऑल और कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये जो जी है कॉमन आने के बाद कैंसिल हो जाएगा। नाउ द रिमेनिंग में एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद इट विल बिकम एम बाई एन प्लस, यहाँ एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय एम बाई एन माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो बच्चा रूट में एन स्क्वायर है तो रूट के बाहर एन आएगा, एंड रूट के बाहर एन आने के बाद वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल गेट एम प्लस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये आ गया आपका रेशियो। लेफ्ट में ए बाई बी चल रहा था और यही देखो हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। बच्चा ये हैवी क्वेश्चंस है, अगर आप वापस से नहीं करेंगे बिना देखे तो आप एग्ज़ाम में भी नहीं कर पाएंगे। तो ये वापस से क्वेश्चन करने हैं एंड ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 9.3 का एक एक क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चंस भी करने हैं, रिपीट करने हैं। एंड अगर आप सब क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, इनको बिना देखे कर लेते हैं, तो अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा, एग्ज़ाम में ईजिली हो भी जाएंगे। In next lecture, we will be understanding special series and sigma notation and what is the relation between general term and sigma notation. We will understand some identities based on sigma also, that how can we find sum to n terms, sum of squares of n terms, sum of cubes of n terms, and exercise 9.4 we will be covering. Thank you.